Okay, I'm sharing my PPT with you. Sorry for the interruption. As you can see now, we are going to start with the modernization, right? That is our next topic today. Now, what is meant by modernization? To increase the production of the goods and services, the producers have to adapt a new technology. So अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. मिकेनाइजेशन से करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि पिज्जा की ब्रेड बनाने के लिए how many quantities within a second the bread can be developed. Now this is what we call a true modernization. The shape, size of the bread will remain the same. So mass production karna with a very good accuracy with a reasonable rate, right? So यही modernization है. Modernization means to produce the goods in such a manner that it can satisfy the needs of many, right? For example, a farmer can increase the output on a farm by using a new variety of the seeds instead of the old varieties, right? So this is a modernization. Now you can see that many drones, many technological things have been developed, right, all over the world, all over the country. So this is the true sense of modernization. Similarly, a factory can increase the output by using a new type of machine, and you can say the adoption of this such kind of new technology is called, in true sense, that we are modern. However, remember one thing, modernization का मतलब इतना ही नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना. So modernization does not only refer to the use of new technology, but also the changes in social outlook, such as that the recognition of the woman should be the same rights as the men. Woman को भी उतना ही हक दिया जाए जितना कि men को दिया जा रहा है. So in the traditional society, if you look, the women are supposed to remain at home while men work. But आज modern society में अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है. Even both men and women both are working, right? And you can see in the urban areas, in the city areas, you will find this. So modern society makes use of talents of the women in the workplace, in the banks, in the factories, schools, etc. और यही such society in most occasions is also prosperous. जहाँ पे स्त्रियों को अच्छा दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे फीमेल को अच्छी पोजीशन दी जाती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके वर्क को, वहीं पे you can say that the society is more prosperous. And you see in America, you see in Britain, you will find that their true sense modern है. तो मॉडर्न का होने का मतलब इतना ही नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाओ. मॉडर्न होने का मतलब आप दिमाग से भी मॉडर्न हो. इट मीन्स यू गिव द राइट टू द वुमेन vis-a-vis men. So modernization has two meanings. Number one, the use of technology in farms and in factories, and second, to change the social outlook, to give the right to the women vis-a-vis men. Now the third pillar was, or the third goal, main goal was self-reliance. So what do you mean by self-reliance? A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources, or by using the resources imported from other nations. दो तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो, या तो अपने रिसोर्सेज यूज करके, या तो बाहर के देश के रिसोर्सेज यूज करके भी कर सकते हो. याद रखिए, the first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. जो चीज आप खुद कर सकते हो वो दूसरों पे हावी होना बंद कर दो. So don't import those goods जो आप खुद import कर सकते हो अपने देश में. ये ट्रू सेंस में मॉडर्नाइजेशन था. सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है, राइट, कि आप टेक्नोलॉजी को तो यूज करो, पर साथों साथ सेल्फ रिलायंस को भी रखो. सेल्फ रिलायंस को रखने का मतलब ये है कि जो चीज हम खुद बना सकते हैं वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. मोदी जी बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो. सो दैट इज द ट्रू सेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस. Yes, we can do it by ourselves. We don't have to rely on others. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. उस जमाने में अगर हम देखें, जब हमको आज़ादी मिली थी तो इंडिया में बहुत दुकान आते थे, राइट? सो डेफिनेटली देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड. फूड जितना चाहिए उतना मिलता नहीं था, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे थे फॉरेन कंट्रीज पे फूड के लिए. Now it is understandable that the people who were recently freed from the foreign domination
should give importance to the self-reliance. उनको self-reliance पे कितना importance देते होंगे जो foreign domination से अभी just खड़े हुए हैं. So definitely सरकार ने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर हम ये फूड हम खुद ही बना दें तो डेफिनेटली वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन पीपल. मैं बता दूं उस जमाने में यूएस से गेहूं आते थे और वो गेहूं भी लाल कलर के गेहूं होते थे जो वहां पे घोड़े को खिलाए जाते थे. वैसे गेहूं इंडिया में इंपोर्ट करते थे हम एंड इंडियन पब्लिक यूज्ड टू ईट. एंड दैट्स व्हाई वी हैव चेंज अवर मोटिव टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंस. Further, it was feared the dependence on imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. अगर हम बाहर के सप्लाईज और बाहर की टेक्नोलॉजी हम अपनाते तो इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती थी और इसीलिए हमने अपनी टेक्नोलॉजी अपनाना चाहा, अपने ही गुड्स बनाना चाहे, स्वदेशी गुड्स, राइट, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट and we can earn the foreign exchanges. समझ में आ रहा है फॉरेन सेल्फ रिलायंस सबको? Yes? Yes, sir. Fine. Yeah. The next and the fourth goal of the 5-year plan was equity. Now, what is equity? Let me tell you. Now, the growth, modernization, and self-reliance by themselves may not improve the kind of the life which people are living. वो लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते जो लोग जी रहे हैं, राइट? सो एक देश में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है और डेफिनेटली वो देश आत्मनिर्भर हो सकता है, सेल्फ रिलायंस हो सकता है. पर उसका मतलब ये नहीं है कि लोग वहां के अच्छे होंगे या लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा. ऐसा भी हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन देश होने के बावजूद मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर. ऐसा क्यों? How can it be happen? So a country can have a high growth, the most modern technology developed in the country itself, but ये होने के बावजूद भी most of its people living in poverty. इसके बावजूद भी लोग गरीबी में सड़प रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. Look at this Ambani. You know the wealth of Ambani? The wealth of Ambani is equal to the 6 lakh people living in Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh. वहां पे 6 लाख गरीब लोग जीते हैं. उनकी जो आमदनी है उसकी अकेले की आमदनी है. तो मुझे बताइए कि कौन डिमांड ज्यादा करेगा? एक मुकेश अंबानी डिमांड ज्यादा करेगा इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए या 6 लाख लोग डिमांड करेंगे? कब देश महान हो पाएगा? जब 6 लाख लोगों का भरण पोषण हो या सिर्फ मुकेश अंबानी का भरण पोषण हो? यस, 6 लाख people का. So definitely, if you are going to talk about equity, it means that we need to look after everyone. जितने भी लोग यहाँ पे जी रहे हैं, जितने भी लोग देश में जी रहे हैं, वो सबका हमको देखना पड़ेगा, right? And that is in the true sense as equity. See, there is a difference between the word equality and equity. मैं ये भी बता दूं. Equity और equality में फर्क है. Equality यानी समानता, right? For example, अगर एक पिता के 3 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा बहुत कमाता है, दूसरा बच्चा मीडियम मध्यम कमाता, तीसरा बच्चा कुछ कमाता नहीं है. अगर वो पिता अपने हिस्से की जो संपत्ति है उसको डिवाइड कर दे तीनों में इक्वली, तो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी. उसको इक्वालिटी बोलते हैं. अगर पिता को ये लग रहा है कि जो कमा रहा बच्चा है उसको तो कोई जरूरत है नहीं, उसको मैं ना दूं चलेगा, और जो एकदम कम कमा रहा है उसको मैं ज्यादा दूं जिससे वो भी उसके लेवल पे आ जाए, सो दैट इज अ ट्रू इक्विटी. उसको ही इक्विटी बोलते हैं. हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, याद रखिए, हम यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं. और जब मैं इक्विटी की बात करता हूँ उसका मतलब ये है कि सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो रिच को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो है ही, वो अपॉर्चुनिटी से जो कमा रहे उससे पैसा उठाओ और किस पे बांटो? जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उसमें बांटो. दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेर हो रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को नहीं मिले, बट शुड बी एंजॉयड बाय द पुअर ऑफ द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी उसके बेनिफिट शुड परकोलेट टू द पुअर, राइट?
should reach to the poor sections as well as instead of being enjoyed by only rich people. So in addition to the growth, modernization and self-reliance, equity is also important. Now there's a difference between equality and equity. एक मैच देखना है आपको फॉर एग्जांपल, और मैच देखने के लिए आपके पास कुछ साधन नहीं है क्योंकि एक दीवार है, राइट, और दीवार को आप चढ़ के देखोगे तो ही मैच दिख पाएगी आपको. तो अगर मैं इक्वालिटी देखूं तो तीनों को एक जैसा ब्लॉक ही दिया जाएगा, जिनकी हाइट कम है उनको भी, जिनकी हाइट ज्यादा है उनको भी, और जो हपाइज है उनको भी. तो इससे होगा क्या, जिनकी हाइट थोड़ी भी अच्छी है वो मैच देख पाएगा, बाकी मैच देखने से वंचित रह जाएंगे. और जब मैं इक्विटी की बात करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं उनको थोड़ा कुछ भी मदद ना करूं जो खुद सक्षम है मैच देखने के लिए. जो मैच देखने के लिए सक्षम नहीं है उनको मैं हेल्प करूं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इन द ट्रू सेंस इक्विटी, राइट. सो इक्वालिटी और इक्विटी में ये अंतर है. इक्वालिटी बोलता है सबको एक जैसा दे दो, एक समान कर दो, बट इक्विटी बोलता है नहीं, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको अपॉर्चुनिटी दो. दैट इज इन द ट्रू सेंस इक्विटी. Every Indian should be able to meet his or her basic needs. याद रखिए, such as he has to meet food, he has to meet a decent house, right, and also he has to meet education and healthcare. उसको अच्छा खाना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज तो चाहिए. बट वो भी ऐसे चाहिए कि जिसके पास नहीं हो उसको ज्यादा दो. तो रिसोर्सेज तो है आपके पास, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, पर रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करते हो. अगर आप सब में इक्वल बांट दोगे तो किसी का भला नहीं होगा. दैट इज व्हाट दे से, इक्वालिटी मींस सेमनेस. बट इक्विटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास नहीं है उनको दो और जिनके पास जरा भी नहीं है उनको ज्यादा दो. सो इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस. आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करो. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So these were the 4 goals. हमने जब प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की और प्लानिंग स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान्स, तो हमारे ये 4 गोल्स थे. मैं इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ ग्रोथ सेक्टर देखा और हम हर एक सेक्टर में देखेंगे कि हमने क्या ग्रोथ किया. वैसे ही पहला जो सेक्टर जो हमको देखना है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर. सो 1950 से 1990 आजादी के वक्त तो क्या था उनको पता है, पर जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया उसके बाद 1950 के बाद 1950s के बाद हमने कैसे ग्रोथ स्टेट पे आगे बढ़े वो देखना है. सो 1950 to 1990. So how was our agriculture sector? Let's see. During the colonial rule there was neither growth nor equity in the agriculture sector. जब कॉलोनी रूल था तब एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही ग्रोथ था ना ही इक्विटी थी, यानी कोई समानता नहीं थी. क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया जैसे कॉलोनियल रूल के टाइम पर ज्यादातर जमींदारी सिस्टम बहुत प्रचलित थी. जमींदारी, जागीरदारी एंड रियायतवारी सिस्टम, जिसके अंदर कल्टीवेटर्स को या टीलर्स को लूटा जाता था. द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दिस इश्यूज. उनको ये एड्रेस करना पड़ा, ये इश्यूज को निकालने थे देश में से. तो उन्होंने कैसे एड्रेस किए इश्यूज? थ्रू लैंड रिफॉर्म्स. इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए. एंड सेकंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन. ये क्या था लैंड रिफॉर्म्स और क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन? लेट्स अंडरस्टैंड, समझते. पहले समझेंगे लैंड रिफॉर्म्स. तो सरकार ने ये जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम को हटाने के लिए क्या किया, राइट. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहला जो रिफॉर्म आया वो था लैंड रिफॉर्म्स. सो व्हाट वाज द लैंड रिफॉर्म? लेट्स अंडरस्टैंड. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी मिली, द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएरीज. इंडिया में इंटरमीडिएरीज बहुत थे, राइट. जमीन के हिस्सेदार, वो जमीन पे खेती नहीं करते थे पर जमीन उनके हाथ में थी और उनको क्या बोला जाता था? जमींदार और जागीरदार. एंड व्हाट दे डू, they used to collect the land from the tillers, right, the actual tillers of the land. उनके पास से वो लगान वसूलते थे, right. इवन दो उनको खाना मिले ना मिले उनके पास से पैसा वसूला जाता था. And even the third thing, they don't contribute towards improvements of the land. अगर उनके पास तो इंसेंटिव ही नहीं मिलता था कि वो लैंड को कुछ इंप्रूव करे भी,
क्योंकि ज्यादातर तो पैसा कौन ले जाते थे? जमींदार। और जमींदार के पास से पैसे कौन ले जाते थे? ब्रिटिश कॉलोनीज। बहुत बचा कुचा जो अमाउंट जो होता था वो बेचारे टीलर्स को मिलता था, और टीलर्स इसीलिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे लैंड के इंप्रूवमेंट के लिए। The low productivity of the agriculture sector forced India to import a food from United States of America. USA से हमको इंपोर्ट करना पड़ा, और कितने साल तक हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमको आजादी मिली महा मुसीबत से। It refers to, तो लैंड रिफॉर्म्स थे क्या? तो it refers to change in ownership of the land holdings. लैंड रिफॉर्म्स ये था कि जो लैंड होल्डिंग की जो ओनरशिप है उसको बदल दी जाए। सरकार ने ये सोचा कि जो जमींदार और जागीरदार के हाथ में है उसको छीन ली जाए, और किसको दे दी जाए? जो रियल में खेती कर रहे, जो रियल में कल्टीवेटर्स है, जो रियल में टीलर्स ऑफ द लैंड है। जस्ट अ ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के एक साल के बाद ही 1948, many steps were taken to abolish the intermediaries and to make the tillers of the owners of the land. इंटरमीडिएट्स को हटाने के लिए काफी काम किया गया, और टीलर्स को क्या बना दिया गया? जो खेड़ रहे थे उनकी जमीन। तो सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जो खेड़ेगा उसकी जमीन, इट इज नॉट बिलोंग टू जमींदार्स एंड जागीरदार्स नाउ। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऐसा करने का रीजन क्या था? द ऑब्जेक्टिव वाज द ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू टीलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। इससे क्या होता? जो टीलर्स है ना, उनको लगता कि डेफिनेटली अगर हम भी कुछ जमीन में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, डेफिनेटली हमसे भी जमीन इंप्रूव होगी, और क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली हम भी वो जमीन को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ मिलने वाला है वो सब मुझे ही मिलने वाला है। एंड दैट्स व्हाई नाउ दे आर गेटिंग इंसेंटिव्स। इकोनॉमिक्स में इंसेंटिव्स वर्ड बहुत याद रखो। जब तक आप किसी को इंसेंटिव नहीं देते ना, इकोनॉमिक्स काम नहीं करता। एंड डेफिनेटली सरकार ने इंसेंटिव दिया, और इसीलिए उनको भी लगा कि ये जमीन तो मेरी हो गई, अभी मैं काम करूंगा तो मुझे ही फायदा होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। दूसरा, सरकार ने एक दूसरा फायदा करवाया। इट वाज आल्सो प्रपोज्ड दैट अ सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। काफी गरीब फार्मर्स थे जिनके पास पैसा नहीं था। सरकार ने बोला कि हम पैसा भी देंगे आपको जिससे आप खेती कर सको। यस विस्मया। Sir, what do you mean by incentive? Incentive means to provide what हम कहते हैं लालच बोलते हैं ना, to provide some good options to work for. जैसे एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोलूं विस्मया कि if you work hard I'll buy your computer, तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर की लालच में आप काम करोगे ना, आप मार्क्स भी अच्छे लाओगे। Yes. So that means you are incentivized. उसका मतलब ये होता है कि आपको इंसेंटिव मिल रहा है काम करने के लिए। कुछ लालच लोभ अगर आप दोगे नहीं लोगों को, तब तक लोग काम नहीं करेंगे। Are you getting it? Yes, sir. तो इकोनॉमिक्स को फंडा समझने के लिए इंसेंटिव समझना बहुत ही जरूरी था। इट मींस जब तक हमने जमींदार के हाथ में दी थी तब तक वो लोग काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि जमीन तो मेरी है नहीं, मैं कितना भी ये जमीन पे काम कर दूं मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट गिव दिस जमीन, दिस लैंड टू द टीलर्स। तो नाउ दे आर इंसेंटिवाइज्ड, नाउ दे थिंक कि अगर हम काम करेंगे तो हमारी जमीन ही अच्छी होगी तो हमको ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मेकिंग इंप्रूवमेंट्स ऑन द लैंड, जो प्रीवियसली नहीं करते थे। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now सरकार ने ये अबॉलिश कर दिए इंटरमीडिएरीज को लाना। सो द अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएरीज मेंट, उसका मतलब ये हुआ सम 200 लाख टेनेंट्स। 200 लाख का मतलब होता है 100 लाख यानी 1 करोड़, यानी 2 करोड़ टेनेंट्स यानी कि वो टीलर्स, दे केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के डायरेक्ट संपर्क में ही आ गए वो। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम आती थी अभी तो सरकार को डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, यानी कोई उनसे अपनी जमीन छीन नहीं सकता था। सो दे आर फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। वो एक्सप्लॉइट होना बंद हो गए बाय जमींदार।
और जमींदार के हाथ में जो जमीन थी वो छीन के किसके हाथ में चली गई? जो रियल में काम कर रहे थे जमीन पे, उनके हाथ में। The goal of equity in agriculture was not fully served by the abolition of intermediaries. याद रखिए, ये एबोलिशन होने से आपको लग रहा है कि अच्छा तो हुआ, पर पूरा गोल सर्व नहीं हुआ। मैं ये भी बता दूं आपको क्यों, समझते इसको भी। Zamindars continue to own large areas of land by making use of some loopholes in legislation. जो बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार थे, उन्होंने ये जमीन को यूज करना चालू रखा, राइट? कैसे? उन्होंने कुछ लूपहोल्स बनाए, राइट? लेजिस्लेशन कायदे में। जैसे कि जमींदार बोलते थे कि वो क्लेम करते थे अपने आप को कि हम सेल्फ कल्टीवेटर्स हैं, हम खुद ही कल्टीवेट कर रहे हैं, हम खुद ही खेत रहे हैं जमीन को। यानी वो बोलते थे ये जमीन तो मैं ही खेत रहा हूं, आई एम द टीलर, और इसीलिए ये जमीन तो मेरे मालिकी की होनी चाहिए, और इसीलिए वो क्या बोलते थे कि ये मेरी जमीन है। ये गलत था एक्चुअल में, पर कौन देखने जाएगा कि कौन खेल रहा था जमीन? सरकार तो किसी की बात पे ही भरोसा करेगा ना। The poorest of the agriculture laborers did not benefit from the land reforms. जो बहुत गरीब लोग थे, राइट, उनको भी कुछ लैंड रिफॉर्म से फायदा नहीं हुआ। जैसे कि शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जो क्रॉप को शेयर करते हैं। अगर क्रॉप ग्रो होता है तो उसमें थोड़ा हिस्सा वो ले लेते हैं। कैसे, क्यों लेते हैं? बिकॉज उन्होंने वो फार्म पे मेहनत की होती है। एंड दूसरे थे लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास जमीन थी ही नहीं और वो जो मजदूरी कर रहे थे उनको भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये जो दो लोग थे, शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबरर्स, उनको लैंड रिफॉर्म से कोई फायदा हुआ नहीं। लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग भी लगाया गया। सरकार ने देखा कि कहीं पे जमीन बराबर टीलर्स को नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने क्या किया? लैंड सीलिंग लगा दिया। यानी बहुत बड़ी जमीन है तो कुछ ही जमीन आपके हाथ में रहेगी। सीलिंग यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट यू कैन होल्ड। सीलिंग का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप कितनी लैंड जमीन ले सकते हो। 2 एकड़ 5 एकड़ सरकार जो निर्धारित करे उतनी ही जमीन, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट वी कॉल लैंड सीलिंग। दिस मीन्स fixing the maximum size of the land which could be owned by an individual. यानी सरकार ने फिक्स कर दिया कि जो सरकार बोले उससे ऊपर कोई जमीन ले नहीं सकता। The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of the land ownership in the hands of few. जमीन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना चला जाए, इसीलिए सरकार ने ये लैंड सीलिंग लगाया। पर क्या लैंड सीलिंग सक्सेसफुल हुआ? लैंड रिफॉर्म का एक पार्ट है। लेट्स सी। The big landlords challenged the legislation in the courts to delay its implementation. जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, राइट, जो बड़े फार्म पे खेती करते थे, उन्होंने क्या किया? ये जो कायदा जो आया था, लेजिस्लेशन जो आया था, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज करना चालू कर दिया और जानबूझ के उनका इम्प्लीमेंटेशन डिले करवाया। Even in order to escape from legislation, they used this delay to register their lands in the name of close relatives. अभी उन्होंने क्या किया? सरकार बोले फॉर एग्जांपल 2 एकड़ की जमीन ही आपको लेनी है, बराबर है, पर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है, तो आप क्या करोगे? 2 एकड़ आपके नाम पे दिखाओगे और बाकी की 8 एकड़ जो जमीन है वो आपके रिलेटिव्स के नाम पे दिखा दोगे अलग अलग। तो अल्टीमेटली तो आपकी मालिकी हो गई ना वापस। जानबूझ के उन्होंने पहले डिले करवाया इम्प्लीमेंटेशन को, एंड डिले करवाने के बाद क्या करवा दिया? ये जो जमीन थी वो उनके क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे दिखाना चालू कर दिया। तो ये भी गलत था, जिसकी वजह से भी मैं बता दूं आपको, काफी जमीन जमींदार के हाथ में वापस चली गई, राइट। इवन दो सरकार का कायदा बहुत अच्छा था, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हुए। The legislation also had a lot of loopholes. ये लेजिस्लेशन का काफी सारा लूपहोल्स था। अभी लूपहोल्स का मतलब क्या? एस्केप विंडो, भाग जाना। यानी कायदे में कुछ गड़बड़ी थी, जो लॉ लाया गया था वो बराबर नहीं था। दैट इज व्हाट यू कॉल लूपहोल्स। होल्स थे which were exploited by big landlords to retain their land. जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट कर देते और अपनी जमीन हड़प लेते थे वापस। यानी लैंड रिफॉर्म्स फुल सक्सेसफुल नहीं हुआ।
उसका मतलब ये भी है। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट में बहुत अच्छा से सक्सेसफुल हुआ। क्यों ऐसा, बाकी स्टेट में क्यों नहीं? बिकॉज these states had governments committed to the policy, और पॉलिसी क्या थी? लैंड टू द टीलर। ये दो ही स्टेट में सरकार कमिटेड थी कि बराबर लैंड दिया जाए टीलर्स को। बाकी सरकार तो क्या घूस देके काम करती थी। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था कि घूस दो और काम निकल जाता था लोगों का। सरकार को घूस देके जमींदार क्या कर देते? जमीन अपने आप पे कर देते थे। सो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में चालू तो बहुत अच्छे से हुआ, पर सिर्फ दो ही स्टेट्स में वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो पाया। और वो कौन से दो स्टेट्स थे? सॉरी, केरला एंड वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. That's it for today. So land एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स पहला रिफॉर्म था। दूसरा रिफॉर्म था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम आज नहीं, हम परसों पढ़ने वाले, राइट? तो आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म, राइट, उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। किसी को डाउट यहाँ तक?